چیمبر آف کامرس لاہور چیمبر آف پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور جتنی ایفرٹ دن رات ہو رہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو ڈیلی جا کے سر کے آفس ہی بیٹھا ہوتا ہوں کہ جو دیکھ رہا ہوں سیکھتا ہوں بلکہ بہت سارا. سر کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیا پاکستان کا اس حوالے سے کہ جس طرح سے سر نے بات کی یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگ ٹریڈر کو تاجر کو بزنس مین کو وہ امپورٹنس یا اہمیت نہیں دیتے. تو جس طرح سے آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ریئلائز کروا رہے ہیں نوک کر رہے ہیں بار بار تو کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں کوئی ایسی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟ قانون سخت ہونا چاہیے. یہاں پہ قانون کو مانتے ہیں. اب دیکھیں پہلے کیسے اشارے توڑتے تھے, اب ان کو پتہ فائن پڑے گا تو ایسے سکون سے. یہ ان پہ صرف سختی کرنے کی, باہر کے ملکوں میں بھی سختی ہے. قانون ہر قانون ہونا چاہیے ہر ایک چیز پہ قانون. تو یہ دیکھیے کیسے تیر کی طرح سیدھے ہوتے ہیں سارے. اچھا ایک ذرا سیریس بات اور ہے, میاں صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چیمبر کو ہیڈ کر رہے ہیں. جی جی آپ یقین کریں کہ کوئی بھی اٹھائیں جو ٹیکس بنتا ہے وہ اگر 1 لاکھ ہے نا اصل میں وہ 10,000 ہے. اور درمیان میں جو مڈل مین ہے نا جب تک ہم اس کو دیتے نہیں ہیں ہمیں 1 لاکھ دینا پڑے گا. اگر ہم دیتے ہیں تو ہمیں 5,000 دینا. بالکل ہر چیز ایک سسٹم. گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, کوئی بھی گورنمنٹ ہے ساری, میں کچھ ایسی بات نہیں کرتا, جی جی میں جنرلی بات کرتا ہوں کہ آپ ایسا ڈیٹا بنا دیتے ہیں, ایسا لا کھڑا کر دیتے ہیں ہمارے سامنے, ایسے فگر لے آتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ دینا نہیں ہے, دے سکتے ہی نہیں کیونکہ ہمارا کاروبار ہی نہیں سپورٹ کر رہا. تو 5,000 کیوں نہیں رکھا جاتا, 10,000 کیوں نہیں رکھا جاتا, بجائے اس کے کہ ہم 500 دینے کے بعد پوری انفارمیشن سب کے پاس موجود ہونی چاہیے, نہ کہ وہ جو مڈل مین جو آپ کہہ رہے ہیں جو وہ خبر پہنچاتا ہے نا وہ اپنے پیسے ساتھ جوڑتا ہے, وہ گھر کی خواتین کی پراپرٹی ٹیکس ہے, یہی انکم ٹیکس ہے, یہی ساری چیزیں ہیں کہ اس کا ایک جو ہے ٹیبل بننا چاہیے کہ یار یہ اتنا آئے گا. اب دیکھیں اگر ہماری جو شکایت ہے نا وہ ہم آپ کو درج کر کے بتائیں. جی جی نہیں بالکل, ہم یہ شکایات جو ہیں اور اپنے جو تحفظات ہیں اپنے جو مسائل ہیں جب بھی متعلقہ افسران آتے ہیں, منسٹرز آتے ہیں, پالیسی میکر آتے ہیں ہمارے پاس چیمبر میں, ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کو ہم یہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو پالیسیز ہے اس کو آپ بہتر کریں, دیکھ لیں. چلیں اگر آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی اچھی پالیسی بنا سکیں تو آپ اپنے ہمسایہ ملکوں میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ انڈیا میں دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ دبئی میں دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل آپ انہی کے سسٹم کو یہاں پہ فالو کر سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ جو ٹیکس اور ڈیوٹیز کی جو ریشو ہے, پرسنٹیج ہے, وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. وہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہ پرسنٹیج اتنی کہ مناسب کر دیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے, ہر کاروباری یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیکس دے, اور خاص کر ان حالات میں. اور جیسے اب جنگ ہوئی ہے, ہم خود کہتے ہیں, اور ہم نے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ ایک تجویز یہ بھی دی کہ اس دفعہ بجٹ میں پاک آرمی کا جو بجٹ ہے وہ زیادہ ہو, اور سن رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں زیادہ. دیکھیں نا جی کہ بجٹ تو ہم کاروباری بندوں میں سے نکلنا ہے نا, ہم زیادہ دینے کو تیار ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے اور پاورفل ہو. خیر بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی پرسنٹیج کم کریں تاکہ, اور ڈیوٹیز جو ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی کم کریں. ہر کوئی امپورٹر یا ہر کوئی کاروبار کرنے والا خوشی سے ٹیکس دے سکے. لیکن نہ جانے کیوں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی, اور جو بیچ میں جو ادارے ہیں اصل میں وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. حالانکہ اگر یہ ادارے ختم کر دیے جائیں اور ریٹ کم کر دیے جائیں تو وہ زیادہ ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے. اچھا ریونیو کی بات یہ کر رہے ہیں نا میاں صاحب, دیکھیے اتنا ہم سافٹ ویئر میں آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے ان کے کھڑے جہاز ادھر ہی اڑا دیے. آپ دیکھیے میرے پاس یہ کارڈ ہونا چاہیے, میں نے وابڈا کو بھی وہی دینا ہے, میں نے جو ٹول پلازا ہے وہ بھی وہی دینا ہے, اور ٹیکسز وہی دینے ہیں. مجھے پتہ چلے کہ یار میں اس سے دے رہا ہوں, اور گورنمنٹ کو ڈائریکٹ دو. درمیان میں جو لوگ ہیں وہ نکلنے چاہیے. اب ہم وہاں کھڑے ہیں. اب یقین کریں کہ یہ جو میں بات کرتا ہوں کہ ٹیکس سسٹم آپ کے گورنمنٹ کے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں سیدھی رقم جانی چاہیے, اس کے بعد آپ کی جو باقی اس کی جو بھی انوائس ہے, جو بھی آپ کورنگ لیٹر ہے, وہ اپنا ادارہ دے کہ میرے اتنے آئے ہیں, میرے اتنے آئے ہیں, میرے اتنے ہیں, اور وہ اسٹیٹ بینک سے لے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جا تو رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں, لیکن طریقہ کار واضح نہیں ہے. میں بہت سی جگہوں پہ بٹا ہوا ہوں. چلے سر یہ بتائیں نا کہ گانے کا کتنا شوق ہے؟
गाने का किसको नहीं शौक जी? तो चलो जरा जब आज पंजाब थोड़ी में ईद रहना का है। दिन है, मौका भी है, इससे पहले कि ज़रूर भी है। हम गाने की तरफ जाएं, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक मैसेज भी ले लें फिर नहीं, गाना। सबसे पहले गाना सुन के अच्छा फिर। सर, अच्छा। क्योंकि मैं माहौल नहीं, चेंज मेरे करना पास- चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई ज्यादा मैं तो हमने सियासी बातें गाने में हैं। मुझसे हाँ ना सर नहीं, जी। नहीं, मैं इतनी पोजीशन में नहीं मैं तो इतनी ये नहीं मैं गा नहीं सर, एक लाइन तो अब आप सुनानी ऐसा करें ना, पड़ेगी। आपने कहा मैं इतनी पोजीशन में नहीं हूँ, आप जितनी पोजीशन में हैं हाँ ये चीज असल बात पता क्या है, नहीं चौर साहब ये तो बनता है। आपने सिलेक्शन जो है ना वो ऐसे लोगों से करनी थी जिनको थोड़ा जैसा ना आपने सर जी, स्टार्ट ना ही मुझसे सर ले जी। लिया। अब किसी को देखते हुए तो मैं ईद पूछ का रहा हूँ दिन किसको है, बना मौका सकता भी हूँ? है, दस्तूर भी है और आप भी हैं। मुश्किल चौर साहब होगा। अहले इल्म है सर माशाल्लाह, एक बड़ा लाइन knowledge शेर है। की सूरत में सुना चले दें, एक कुछ शेर सुना दें शेर पोएट्री की सूरत में सुना दें ना मुझे अपनी बरादरी का सुना। कंटिन्यू रखिए, उसके बाद मैं याद करता हूँ उसके बाद मैं सुनाऊँ। नहीं, फिर उसके बाद तो हमारे पास शीजा जहां मौजूद है। सामने हमारा राना लियाज साहब हैं जी माशाल्लाह, इनकी भी बात बड़ी खूबसूरत है। मैं कोशिश करूंगा एंड पे चले कोशिश हो कोशिश सकती है। करूंगा। राना साहब आप कुछ मैसेज भी दे दें, कुछ सुना। ना होता ना मेरी इतनी तबीयत खराब है, सर डॉक्टर रहते रहते मैंने कहा 2 मैंने डिस्प्रिन ली, नहीं, एक नहीं, पैराडोल ली, उसके बाद में आया हूँ। नहीं, thank you, क्योंकि sir. मैंने कहा यार वसीम ने कहा मैंने नहीं रहने सर, दिया। थैंक यू, आपका तो शुक्रिया मेरी सर। गाड़ी में तबीयत खराब थी, अब सही हो गई है तो गाना जरा और सही होगा। नहीं आपका सर, मैं चौर साहब से रिक्वेस्ट की और बिजी थे तो मैंने कहा सर आज ईद का दिन है तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल लें, तो वो भी अच्छा, तशरीफ लाएं। अब- लेकिन मेरे नाम पे मेरे ऊपर कोई 18 गाने हैं जो गाए जा चुके हैं, जिसमें सतेंद्र सरताज भी मौजूद नहीं वो है। नाम भी उनकी बताया ना बात- कि कौन से नाम पे बड़े गाने हैं। कौन सा चौधरी 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 नहीं 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 नहीं, वो बड़े वसीम को पता है। नहीं वो बड़ा अच्छा आप भी कहेंगे कि इनका ना तो आप कहेंगे कि ये इनके ऊपर ये है। इस पे डिस्कस करेंगे, जो है ना एक कंबो और कंबोजा ना एक ट्राइब है इंटरनेशनल, वो सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं बता दूं, नहीं इसके बाद अगले सेशन चलो। में सर वो लंबी डिस्कस, अभी हम जा रहे हैं, अभी बिजनेस की बात हो रही है जी। सर आपको मैसेज भी दे दें आज केविन के हवाले से, और जो कि गोश्त का सारा हजम खाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, मैसेज तो ये है कि मैं हमारी 24 या 25 करोड़ आवाम में से आप यकीन करें 18 से 20 करोड़ आवाम के हाथ में मोबाइल होते हैं। ऐसे ही अच्छा, जिनमें नौजवान की आदत है वो आलमोस्ट 12 से 13 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जिनके हाथ में, जो सेंसिबल हैं, जिनके हाथ में फ़ोन होते हैं। जब जंग लगी ना तो इन्होंने इतना बेहतरीन किरदार अदा किया, बेशक। इन्होंने मोर्चे संभाले और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेशक आप यकीन करें, मज़ा। बेशक। तो मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखा करें। ये जो फॉरवर्ड मैसेज आते हैं इन पे कभी भी एतबार मत करें। फ़ौज के ख़िलाफ़ तो आपका बोलना, उनके ख़िलाफ़ बोलना ऐसे ही है जैसे अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बोलना, चूँकि ये धरती आपकी माँ है और ये उसके रखवाले हैं। अच्छा, यहाँ और भी बहुत सारी बातें कंट्रोवर्शियल चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, मगर कभी भी अपनी धरती के ख़िलाफ़ मत बोलें। जो लोग आपको बहकाते हैं, चूँकि नौजवान की आदत होती है, जो नौजवान लोग हैं कच्चे जहन के होते हैं, अभी छोटे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग या ऐसे लीडरान आप समझा करें कि वो अपने बच्चों को क्यों नहीं सामने लेके आते, वो आप ही को क्यों टारगेट करते हैं, आप टारगेट बन रहे होते हैं। तो खुदा रहा अपने पाकिस्तान, अपने इदारों के खिलाफ मत बोला कर। ये मेरा मैसेज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Thank और you. दूसरा रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल ईद है, आप खाएं पिएं मौज करें, मगर कम खाएं, गोश्त कम खाएं, वक्फे से खाएं, ताकि आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, ताकि आपकी ईद अच्छी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और चूँकि सर की एक कमिटमेंट भी है, मीटिंग भी है, तो सर आप लाहौर चैम्बर की तरफ से, आपकी तरफ से हमारे नाज़रीन को एक मैसेज आना चाहिए सर आज ईद के हवाले से। जी बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा इससे तो बड़ा दिन ही हमारे लिए कोई नहीं होता, और आपको पता है हज, फिर उसके बाद ईद उल अज़हा, तो ये हम मुसलमानों के लिए बड़ा एक ब्लेसिंग वाला दिन होते हैं दोनों ही। और मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस ईद पर ऐसे जो रिश्तेदार हैं, ऐसे जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे जो हमारे मुलाजमीन हैं या गिरदो नवा, हमें देखना चाहिए कि जो कुर्बानी करने के अहल नहीं हैं उनको ज़रूर ये गोश्त हमें देना है, पहुंचाना है, और अपनी खुशियों में उनको भी हर हाल में शरीक रखना है, ताकि वो भी इस ईद की खुशियों को एंजॉय कर सकें। और मेरी तरफ से
ताजर कम्युनिटी की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Cheers, अभी ग्रेट। जी जी सर, आपका भी मैसेज चाहिए। अब आपका मैसेज। देखिए जी, हम लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी। सारे चेहरे खुश हैं। रास्ते में मैं आया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के ऊपर नज़र पड़ रही है। वही है, इसार है, कुर्बानी है, किस तरह से आपने इसको करना है, सोचना आपने है। जो गरीब हैं उनका ख्याल करें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शीजा जहाँ आप मैं समझता हूँ कि बहुत तंगी में है, बहुत तकलीफ में है, सारे खुश नहीं हैं, सही, सारे खुश नहीं हैं। इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जितना हो सके आप लोग मैक्सिमम करें। और मैं एक बात और आपको बताऊं, जिंदगी में मजलूम की दुआएं लें, गरीब की दुआएं लें। उसकी कोई गलती है तो वो गरीब समझे। मेरी बात समझ रहे? कोई ना कोई उससे गलती है, लेकिन हम लोगों ने उसकी गलती को नहीं देखना, हमने उसका साथ देना है, उसको पकड़ के ऊपर लेके आना है। तो बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं मुझे, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ऐसे है, ऐसे ऐसे। मैं समझता हूँ कि इंसानियत के नाते आप में इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, इसार जिंदा रहना चाहिए, इसी का नाम कुर्बानी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब चूंकि सर ने भी जाना है, तो इससे पहले कि हम इस खुशी को थोड़ा सा मौसीकी के थ्रू सर हम सेलिब्रेट भी कर लें, तो शीजा जहाँ हमारे साथ मौजूद है, शीजा जी एक सॉन्ग हो जाए। जी जी बिल्कुल। अगर इनके लिए क्लैप हो जाए मतलब सर। शीजा जी कौन सा सॉन्ग है जल्दी बताइए।